पिलखी नगर के एमएलए एसी श्रीनिवास ने अक़लियती महकमा के नौ मुकर्रर करदा कायदीन को मुबारकबाद दी। पिलखी नगर बेंगलुरु कांग्रेस पार्टी की निचली सतह पर मौजूदगी को मजबूत करने की समत एक अहम कदम में पिलखी नगर के एमएलए श्री एसी श्रीनिवास ने अक़लियती महकमा और मकामी कांग्रेस कमेटियों के नए मुकर्रर करदा ओहदेदारों को तहे से मुबारकबाद दी। यूथ लीडर परवेज पाशा फारूक को अक़लियती डिपार्टमेंट का डीजे हिली ब्लॉक सदर मुकर्रर किया गया है, जबकि सैयद इमरान ने अक़लियती डिपार्टमेंट के पिलखी नगर ब्लॉक सदर का ओहदा संभाल लिया है। मजीद बरा फयाज पाशा डीजे हिली ब्लॉक सदर के तौर पर अपनी क़यादत जारी रखे हुए हैं और जोशुआ एम को डीजे हिली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदर के तौर पर ऐलान किया गया है। ये ऐलान एमएलए एसी श्रीनिवास के दफ्तर में सीनियर कांग्रेस कायदीन और खैर ख्वाहों की मौजूदगी में किया गया। साबिक कारपोरेटर AR जाकिर ने मकामी कायदीन विष्णु शिवा और जफरअल्लाह के साथ इस मौके पर शिरकत की और नौमुंतखब कायदीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन तकर्रियों को आने वाली शहरी मसरूफियात से पहले पार्टी की मकामी इकाई को मुतहर्रिक करने और कांग्रेस पार्टी के तंजीमी ढांचे में अक़लियती बरादरियों की बेहतर नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा है। रेहाना तबस्सुम न्यूज़ रीडर एक स्पेशल रिपोर्ट लीडर ई सियासत रिपोर्टर खालिद असलम बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरें शेयर करें। सर ಇವತ್ತು ಪುಲಿಕೇಶ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಂಡು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫರೂಬೈ ಅಂತ ಡಿಜೆಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನನಗೇನು ಖುಷಿ ಫರೂಬೈಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಇವ್ರದ್ದು, ಆದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬರೀ ಬೂತ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು। ಇವತ್ತು ಆ ಅಂತರ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಆ ದೇವರು ಕೊಡೋದು। ಆ ದೇವರು ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಪುಲಿಕೇಶ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಕತ್ವನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹೇಬರು ನೋಡಿ, ಯುವಕರನ್ನ ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮದು ಇಮ್ರಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕರನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಪರ್ವೇಜ್ ಪಾಷಾ ಅಂತ ಒಂದು ಅಲಿಯಾಸ್ ಫರು ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ। ನಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2,40,40,000 ಜನ ನಮ್ಮ ಮತದಾರ ಇದ್ದಾರೆ। ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದು ಪುಲಿಕೇಶ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸೇ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಪುಲಿಕೇಶ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅವರು। ಆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾಯಕತ್ವನ ಇವರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫರು ಅವರು। ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೈನ ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರ್ತೀನಿ। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫರ್ವರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್। ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ರೇನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದ್ರೇನು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿ ವಾಡ ಬಂದು ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂದುಳಿದ ವಾಡೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸು ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗಗಳಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿದೆ। ಮತ್ತು ಏನು ಹಲವಾರು ನಾಯಕರುಗಳಿದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ। 15 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೂ 2 ಶಾಸಕರುಗಳಿದ್ದರು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಇವಾಗ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಒಂದು ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿಗೆ 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿರೋ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಲೈನ್ಗಳು, ವಾಟರ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಪುಲಿಕೇಶ್ ನಗರ ಇನ್ನು ತನಕ 1000 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ। 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮದು 5 ವರ್ಷ ಕೊಡುಗೆ ಏನು, ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ। ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡ್ರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಆಜಮ್ ಬೈ ರೋಷನ್ ನಗರ್ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಫರ್ವಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಮಾದರಿ ವಾರ್ಡಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಸವಲತ್ತು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ। ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ। ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀರು ಇರಲಿ, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ರೋಡ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ
ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಎ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಹೇಬ್ ಹತ್ರ ಅನುದಾನವನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಲುಕ್ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತನ ಕೆಲಸನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಾವು ಮಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮರೆಯೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲಮೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು, 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಬಾರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಿತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗು, ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಜನ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯಗೆ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್, ಪುಲಿಕೇಶನ ಜನತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ हमारा फ्रेंड बचपन से फ्रेंड हमारा इमरान ने आज मैंने पोस्ट ले को ही हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट कंग्रेचुलेशन पूरे जने को हमारा साथ काम करी पूरे जने पूरे इलेक्शन में काम कर रही आपसे नहीं एमएलए इलेक्शन करी एमपी इलेक्शन में काउंसिल इलेक्शन 2 बार करी पूरे इलेक्शन काम कर रही हमारे साथ उसा हमारे एमएलए को पूरे जने रिकमेंड करे विष्णु फयाज ना पूरे मिल को नहीं ऐसा इमरान को देता अच्छा रहता को एमएलए पूरे जने का डेटा देखो एमएलए भी अच्छा करे तो अच्छा रहता को इमरान को करी। आज का दिन ऐसा महसूस हो रहा है कि एक इलेक्शन की तरह महसूस हो रहा है। की कर बोले तो हर हमारे एसी श्रीनिवास साहब जो हमारे सदर हैं उन्होंने हर इंसान को आइडेंटिफाई कर रही। बहुत से जना क्वेश्चन कर रही, यूथ को दे रही कर को, लेकिन उन्होंने क्या चाह रही कर को बोले तो यूथ में जो जोश रहता है वो जोश जो हमारे सीनियर लीडर्स रहती उन्होंने क्या करती, बड़ा काम करने की कोशिश करती। अब इनको इंकरेज कर को उनके साथ देखो सीनियर एंड जूनियर दोनों को भी मिला को काम करे तो एक मुकम्मल काम होता। इसके वास्ते हमारे एसी श्रीनिवास साहब आज के दिन 2 सदर जो माइनॉरिटी सदर चुनको, एक आको परवेज पाशा एंड उर्फ फर्रो, एक सैयद इमरान, इन्हों को हमारे फर्रो हमारे साथ पहले से जानती, हमें बचपन से देख ले कोई। हमारे इमरान को बहुत इलेक्शन में हमारे साथ काम कर कोई। इनको एक ऐसा फीडबैक ले लगाना चाह रही कि नौजवान को भागा दौड़ी करने में इजी रहना, हर चीज़ को पहुंचना। और जितने भी ये पोस्ट आज अनाउंस करी ऐसे बहुत से 1000-1500 पोस्टा ही जो कौन भी बेजार नहीं होना, जिसे भी पोस्ट की ज़रूरत है उन्हें अपना जितना भी बायोडाटा है ले लेगा को हमारे सदर एसी श्रीनिवास साहब की ऑफिस में पहुंचा सकती हूँ और रियाज भी रहती। जितने भी इंटरेस्टिंग आज जो माहौल है, मैं मेरे दिल की गहराई से मेरे 2 भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे साथ नहीं, इनके साथ हमें रखो, मैं और हमारा जोशवा डीजे हल्ली का ब्लॉक प्रेसिडेंट हमें मिल को इनके साथ एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा काम, जैसे बताए कि हमारे पुलकेशी नगर क्षेत्र में 4 प्रॉब्लम मेजर हैं, पानी का, सैनिटरी का, स्ट्रीट एंड गार्बेज। इसके वास्ते जैसा इन्हों हमारे साथ है, हमारे भी एक 25 जने की एक कमेटी हुई, तो इनकी भी एक 25 जने की कमेटी होती है, हमना 50 जने मिलती, तो आदमी हमें रिच होने के वास्ते हमना ज़रा सहूलत होती है। ऐसा हमें नेक्स्ट महिला अलाउंस कर रही साहब, उसके बाद स्ट्रीट वेंडर है, लेबर सेल है, इंटर है, हमारा यूथ के अभी बहुत से पोस्टर्स हैं, उनको सभी ब्लॉक को डिस्कशन कर रही साहब। नेक्स्ट यूथ के भी जो बॉडी मिस हो है उसे सब फिल कर को एक मुकम्मल टीम बना को एसी श्रीनिवास साहब के नेतृत्व में भी 4 MP को देखो हूँ, जाफ़र शरीफ साहब हैं, हमारे सी नारायण स्वामी साहब हैं, कृष्ण बेरा गौड़ा साहब हैं, राजू गौड़ा साहब, साथ ही साथ 3 MLA देखो, प्रसन्न कुमार साहब को देखो हूँ, ये श्रीनिवास मूर्ति एंड एसी श्रीनिवास साहब। लेकिन इनका काम करने का स्टाइल अलग, इन्हों आज तक देखो तुम्हें इतने MLAs को देखे पूरे फिल कर ले गए नहीं हूँ, ज़रे हुए थे ज़रे नहीं हुए थे, लेकिन ये MLA क्या कर रही, जितने पोस्टर्स हैं पूरे पोस्ट को पब्लिक, मेरे लीडर्स जो मेरे पीछे ही उन्होंने मेरे पीछे नहीं रहना, पब्लिक के पीछे रहते, मैं मेरे लीडर के पीछे रहता हूँ कर को बोलती। एक ऐसा रहबर हम ना मिला कर को बोले तो नेक्स्ट पुलकेशी नगर में ये डेवलपमेंट होती, तरक्की ये होती है, उसके वास्ते एक मुकम्मल टीम बनेंगे, हमें सब साथ काम करेंगे, पब्लिक को रिच होता है। इसके अलावा क्यों लगा आपको सिर्फ ये दोनों ही चाहिए, और भी लीडर? हाँ है, देखो ये तुम्हें बोले ना क्यों लगा कर को बोले तो एक
इनके नसीब में ये था, हमारे एमएलए सब चुने। दूसरे भी मेहनत पड़ रही, उनके नसीब में भी है कि ऐसा नहीं है कि इनको मिल गया हमें ज़माने से काम कर रहा को। अल्लाह सबकी नसीब में, सबका इसमें लिखो देखो भेजा, सबको अहदा मिलता है। अब भी 1000-1500 अहदे ही उसे भी देने की कोशिश करती। और जो हमारी नज़र से मिस हो है उसके वास्ते AC श्रीनिवास साहब की ऑफिस है, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है, वार्ड प्रेसिडेंट है, हमें रहती। जो भी आपको इंटरेस्टेड है, जो भी मेहनत पढ़ रहा हूँ मैं, पब्लिक के वास्ते कुछ करना चाहूँगा तो उन्हें आको यहाँ अपना रिज्यूम दे सकता। उसे हमें तहकीकात करको क्या करना हमारे एमएलए साहब को दिए। तो हमारे एमएलए साहब जैसा आज डिक्लेयर करी वैसा आज हर आदमी को पोस्ट मिलने की हमें कोशिश करती, सब कने रिकमेंड करती। सर इसके अलावा उन्होंने तालीम की सतह पर बात की है, इसके लिए आपका क्या किस तरह साथ रहेगा? हाँ देखो, बात उठाए तो क्या करती, डीजे हल्ली केजे हल्ली, डीजे हल्ली केजे हल्ली बराबर बोलती। लेकिन ये डीजे हल्ली केजे हल्ली क्या होगा करके बोले तो एजुकेशन इज द लैब्स। एक एजुकेशन, एक जो स्टूडेंट है उसे जाको बोलो आ रहे वहाँ जाको लड़ेगी तो उन्हें नहीं लड़ता, उन्हें बेसिक जानता मैं कहीं को जाकर लड़ूँ, क्या वास्ते लड़ूंगा। उसके वास्ते हमारे AC श्रीनिवास साहब सदर क्या करी, फर्स्ट मैं फोकस एजुकेशन पर देता हूँ। यहाँ के स्कूल देखो, आज तक कौन से भी MLA गवर्नमेंट जितने हमारे स्कूल हैं, टीचर हैं, लाखों करोड़ों रुपए आ रही, वो ज़ाया जा रही। हमारा कर्नाटक का रिजल्ट बहुत कम आया है। उसके वास्ते हमारे पुलकेशी नगर क्षेत्र में हमारे MLA साहब सबको मीटिंग करको हिदायत देखें, क्या बोलो तुम्हें आको आइंदा ऐसा करे, मैं तुम ना दूसरा एक्शन उठा दूँ। लेकिन हमें जितना हो सकती फोकस करने की कोशिश कर रही, तुम्हें भी हमारे साथ रहो। जो हम ना इल्म नहीं आता वो भी आप देने की कोशिश करो। हमारी टीम बड़ी हो रही है, दिने दिन पर मिलकर काम करती। ऐसा नहीं है कि खाली माइनॉरिटी मेन ब्लॉक प्रेसिडेंट, इसमें SC है, उसके बाद आपको लेबर सेल है, उसके बाद ये स्ट्रीट वेंडर है, हमारे यूथ हैं, स्टूडेंट्स है, समझ रही, हर चीज़ है। हर आदमी हमारे साथ रखो, ले चले। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी, सेक्युलर पार्टी है। आज तक को सा तभी इंसान कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलेगा तो कांग्रेस पार्टी का एक ही चेक सोल्जर राहुल गांधी, उनके बेसिस के ऊपर हमें मेहनत पड़ रही। आइंदा हमें सारे स्टेट मिल को उनको PM बनाने की कोशिश करती, आपका साथ। अस्सलाम वालेकुम। माइनॉरिटी ब्लैक प्रेसिडेंट मुझे पोस्ट मिल को है। सबसे पहले मैं अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे माइनॉरिटी ब्लैक प्रेसिडेंट मिला। उसके ऊपर आपको सारी आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे MLA AC श्रीनिवास साहब का तहे दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे काबिल समझ के मुझे पोस्ट दिया है। उसके बाद हमारे ब्लैक प्रेसिडेंट जोश साहब का, फयाज भाई का, जितने भी लीडर्स हैं, एक्स काउंसलर हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह अब ये पोस्ट मुझे इंशाल्लाह MLA ऑफिस में अब पोस्ट दे रही मुझे, इसके वास्ते मैं बहुत बहुत MLA साहब का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद मुझे पोस्ट मिल को है। इसके बाद जो भी यहाँ के मोहल्ले के हंदे, हमारे पुलकेशी नगर का छंद है, इंशाल्लाह इसके बाद हमें कोशिश करको काम करने की कोशिश करती। MLA साहब करने ले लग जाको मुद्दे के पर रहे, ये पानी का मसला हो, या ग्रावेज का मसला हो, क्या जो कंप्लेंट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं वो ले लग जाको MLA साहब करने रखो करा ले को आने की कोशिश करता हूँ। यहाँ माइनॉरिटीज़ ज़्यादा है, इंशाल्लाह माइनॉरिटीज़ को भी, सारी आवाम को, हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको ले को साथ चलने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सबको भी नमस्कार। आज 7 जुलाई हमारे MLA AC श्रीनिवास साहब पुलकेशी नगर के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट बना को ही मन जाए। उनकी गाइडलाइंस में, उनके लीडरशिप में, उनके डायरेक्शंस में इंशाअल्लाह कांग्रेस पार्टी को एक स्ट्रांग पार्टी बना को ले को आना ये पुलकेशी नगर के अंदर है। और हमारे MLA AC श्रीनिवास से उनका नाम और कांग्रेस का नाम हमेशा ये पुलकेशी नगर में ऊपर रहना। और आदमियों का जितने भी माइनॉरिटी का, तो खाली मुसलमान नहीं, माइनॉरिटी के अंदर क्रिश्चियंस भी आती हैं, सिख्स भी आती हैं, बुद्धिस्ट भी आती हैं, उन सबको साथ में ले को कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी सेक्युलरिज्म में सबका साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूरे मिलकर रहना
वो आइडियोलॉजी के साथ MLA AC श्रीनिवास गाइडलाइंस में उनके लीडरशिप में मैं काम करना चाह रहा हूँ। और मैं हमारे क्लोज फ्रेंड विष्णु उनका और शिवा का बहुत गहरे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब तक हमारी पॉलिटिकल जर्नी में साथ दे कोई अब तक हमारा साथ दें। साथ में हमारे वार्ड प्रेसिडेंट और ब्लॉक प्रेसिडेंट फयाज भी और हमारे अशोक नाग उनका भी साथ देना चाहता हूँ, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ तक अब तक अभी हमारा पॉलिटिकल जर्नी ले कोई इनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। ये सपोर्ट सब उनके वजह से ये पोजीशन भी MLA साहब मुझे देखो और ये पोजीशन को इंशाल्लाह आगे भी जाओ डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो सका पब्लिक का जो भी प्रॉब्लम है वो सब समझ कर इंशाल्लाह इसको हमें काम करने के वास्ते पूरे टीम मिलकर काम करती है। क्या अज़ाइम है सर? अज़ाइम तो तुमने तो मालूम है कांग्रेस गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है वो कहीं अब 5 गारंटी स्कीम्स हैं उसका अवेयरनेस करना, जो बेनिफिशियरीज हैं उनको अगर नहीं मिल रहा तो उनको पब्लिक को रीच आउट करके हमें उनके बेनिफिट्स को पहुंचाना। और हमारा AC श्रीनिवास सर का पहला टॉप प्रायोरिटी एजुकेशन। तो एजुकेशन हमारे इलाके में बहुत कम है। कहाँ हमें गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में अगर काम बराबर से नहीं हो रहा वहाँ को रीच आउट करना। एजुकेशन एक ऐसा मसला, अगर एजुकेशन बच्चा को अच्छी दिए, तालीम अच्छी दिए तो उनका फ्यूचर अच्छा होता। तो हमारा मकसद क्या है, तुम्हें जैसा जानते हैं पुलकेशी नगर में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, डिसिप्लिन नहीं है, वो सब दूर करना हमें अगर तो एजुकेशन के ऊपर फोकस करना। जैसा हमारे MLA AC श्रीनिवास का प्रायोरिटी है एजुकेशन पर काम करना, वो गाइडलाइंस पे इंशाल्लाह हमें भी एजुकेशन पर काम करते हैं। तो हमारा फिलहाल मुद्दा एजेंडा टॉप है सो एजुकेशन।